God has been good. प्रभु भले रहे हैं। Yes, God has been good to me, प्रभु मेरे प्रति भले रहे हैं, to my family, मेरे परिवार के to प्रति, the church, कलीसिया के to प्रति, the city, ये मुंबई शहर के प्रति and to the nation also. और देश के प्रति भी। Yeah, I believe very strongly मैं विश्वास करता हूँ। on last Friday. गए फ्राइडे I told you if you are in pain, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप दर्द में हो, you should do two things. आपने दो चीजों को करना है। If you are in trouble, you should do two things. अगर आप समस्या में हो तो दो चीजों को करना है। The first thing I said, you should pray. पहली चीज मैंने कहा था कि प्रार्थना करना है। The second thing I told you, दूसरी चीज मैंने कहा था, yeah, you should learn to praise the Lord. स्तुति करना सीखना है। Don't say, Pastor, you pray, I will sleep. ऐसा मत कहो पास्टर आप प्रार्थना करो मैं सोऊंगा। No, you pray, I pray, we pray together. नहीं, आप और मैं साथ में हम प्रार्थना करेंगे And we will praise also the Lord. और हम स्तुति भी करेंगे। And I told you, when you do these things, four things will happen. मैंने आपको बताया था कि जब आप ये दो बातों को करोगे तो चार चीजें होगी। Number one, I told you, पहला मैंने आपको कहा था, God will shake things around. प्रभु चीजों को हिलाएंगे आपके इर्द गिर्द। थोड़ा जोर से आमेन बोलो। God will shake things around for you. प्रभु आपके लिए चीजों को हिलाएंगे। अगर तुझे हिलाना है तो प्रभु तुझे भी हिलाने वाला है। आमेन। Because He loves us, you know. कि प्रभु हमसे प्यार करते हैं, That's why He's going to shake us. इसलिए प्रभु चीजों को हिलाने वाले, Some हमें of हिलाने us वाले have हैं। become spiritually dull, so the Lord is going to take us and just shake us like हम that. में से कुछ लोग आत्मिक रूप से मंद हो गए हैं, इसलिए प्रभु हमें हिलाने वाले हैं। And there are some other things God will shake for you. और कुछ और चीजों को प्रभु आपके लिए हिलाएंगे। There. Number two, दूसरी बात, yeah, doors will open for you. आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। Number three, that the chains will be broken in the name of the Lord. यीशु के नाम में जो साकलियां है वो टूट जाएगी। Some of us are slaves to the enemy. हम में से कुछ लोग दुश्मन के गुलाम हो गए हैं। In some areas of our life, we are slaves. हमारे जीवन के कुछ कुछ क्षेत्रों में हम गुलाम हो गए। But the Lord says, because I love you, लेकिन प्रभु कह रहे हैं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, I'm going to break those chains which bind you, वो साकलियां जो तुम्हें बांध के रखी है मैं उसे तोड़ूंगा, so that you will be free to do what God has called you to ताकि do. तुम आजाद हो जाओ वो करने के लिए जिसके लिए प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। And number four, चौथी बात, salvations are going to happen. उद्धार आने वाला है। I'm believing that salvation is going to happen in your family. मैं विश्वास करता हूँ उद्धार होगा आपके परिवार में। Yes, I am believing in these last 3 months आमेन। मैं विश्वास करता हूँ ये 3 महीनों में that salvations will come. उद्धार जरूर होगा। Your children, if they are not following the Lord, I am believing that they will come to the Lord. अगर आपके बच्चे प्रभु का पीछा नहीं कर रहे, मैं विश्वास कर रहा हूँ कि वो प्रभु के पास आएंगे। Can I hear an amen there? Amen. All right. Now, today I want to talk to you about the power of praise. आज मैं स्तुति में जो सामर्थ्य है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। There is power when you praise the Lord. जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं उसमें सामर्थ्य है। Acts chapter 16 verse 25. प्रेरितों के कार्य 16 में 25। Now, Paul and Silas, they are in the prison. पौलुस और साइलस जेल में है। Not because they did something wrong. उन्होंने कुछ गलत किया इसके कारण नहीं, No, but because they followed the Lord. लेकिन यीशु का पीछा करते थे इसलिए। Maybe some of you are in pain because you are doing what God is saying. हो सकता है आप में से कुछ लोग दर्द में हो क्योंकि प्रभु ने जो कहा है वो कर रहे हो But आप। what did they do? लेकिन उन्होंने क्या किया? They were praying वो प्रार्थना कर रहे थे and they were praising और God. प्रभु की स्तुति कर रहे थे। Is there anybody over here who is hearing me saying, I will praise the क्या कोई यहाँ Lord? पर है जो मुझे सुन रहा है जो कह रहा है मैं प्रभु की स्तुति जरूर करूंगा? अब ये मत बोलो तुम्हें गाना नहीं आता है। मुझे भी गाना गाते नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है। लेकिन मैं गाना लगाता हूं और उसके साथ गाता हूं। You have to learn to praise the Lord. आपको सीखना है प्रभु की स्तुति करना। And these 3 months you should do it. और ये 3 महीने में आपको ये करना है। Now, what did Paul and Silas do in their pain? पौल और साइलस ने क्या किया उनके दर्द में? Prayed उन्होंने प्रार्थना की and praised. और स्तुति की। Yeah, Psalm 119 verse 164. भजन संहिता 119 में 164। From today onwards, आज से आगे yeah, we are not just going to have tea break, सिर्फ चाय का ब्रेक नहीं होगा, coffee break, कॉफी का ब्रेक, snack break. नाश्ते का ब्रेक, We are also going to have praise break. हम स्तुति के लिए भी ब्रेक लेंगे।
Now this scripture which I showed you right now, Psalm 119 verse 164. ये जो वचन है भजन संहिता 119 में 164, He's a king who is writing this. ये राजा है जो लिख रहा है ये। And you know what he says? और पता है वो क्या कहता है? I praise the Lord 7 times a day. दिन में मैं प्रभु की स्तुति 7 बार करता हूँ। Now, what is going to happen when you start praising God? क्या होगा जब आप प्रभु की स्तुति करने लगोगे? You are ready? आप तैयार हो? Are you ready, church? क्या आप तैयार हो? What will happen when you praise God? क्या होगा जब आप प्रभु की स्तुति करोगे? Number 1, पहली बात, God will fight for you. प्रभु आपके लिए लड़ेंगे। Please write this. ये लिख लो, Your God आपके प्रभु is a warrior. वो योद्धा है। God tells you, you don't fight. प्रभु कहते हैं कि तुम लड़ो मत। If somebody slaps you, he says, don't slap, give them the other cheek. अगर प्रभु कह रहे हैं अगर कोई तुम्हें चाटा मारता है तो दूसरा गाल दे दो। God says, somebody takes 1 rupee, give him 2 rupee, take it. प्रभु Go. कह रहे हैं अगर कोई 1 रुपया लेते है उसको 2 रुपए दे दो। Have you ever thought why? कभी सोचा है क्यों? Because God says, not you, I will take the vengeance. I क्योंकि will प्रभु take the कह रहे हैं revenge. कि तुम नहीं मैं वो बदला लूंगा। Can I hear an amen there? Amen. Okay, now listen. सुनो, 2 Chronicles 20 verse 22. दूसरा इतिहास 20 में 22। Yeah, there's a small nation called Judah. यहाँ पे एक छोटा राष्ट्र है जिसका नाम है जूडा The king is Jehoshaphat. और उसका राजा जो है उसका नाम है यहोशाफात। Suddenly there are 3 kings who want that land. अचानक 3 ऐसे राजा उठते हैं जिनको वो भूमि चाहिए। They come together. वो साथ में मिल के आते They हैं plan an attack. और आक्रमण की योजना बनाते हैं। Who is Jehoshaphat? यहोशाफात कौन है? Child of God. प्रभु का बच्चा है। Who are Judah? जूडा कौन है? People of God. प्रभु के लोग हैं। So there are 3 kings coming against the children of God. तो 3 ऐसे राजा है जो प्रभु के बच्चों के खिलाफ आ रहे हैं। So what happens when somebody comes against you, powerful? What happens? तो क्या होता है जब कोई सामर्थ्यशाली व्यक्ति आपके खिलाफ आता है? You get fearful. आप डर जाते हो। डरते हो, डरोगे, लेकिन डर के यहाँ रुकना नहीं है क्योंकि हमने प्रभु के ऊपर भरोसा करना है। आमेन। Can I hear an amen? आमेन। So in these 3 months there will be times where you will go through pressure. तो ये 3 महीने में ऐसे समय होंगे जहाँ पे आप दबाव से गुजरोगे। Don't worry. चिंता मत करो। Say to yourself, don't worry, don't worry, अपने आप से कहो, चिंता don't मत worry, करो। don't worry, don't worry, don't चिंता worry. मत करो। Okay, so what did they do? What did they do? तो उन्होंने क्या किया? Yeah, what did Jehoshaphat do? यहोशाफात ने क्या किया? What did the people of Judah do? जूडा के लोगों ने क्या किया? They started to sing praise to वो God. प्रभु की स्तुति करने लगे। आमेन नहीं बोल रहे हो? मैंने कहा ना, आपके तकलीफों में आपका जो जबान है उससे, नॉट जबान, योर माउथ, द एनिमी स्टिचेस विथ योर प्रॉब्लम. तो आपकी समस्या में आपका जो मुंह है उसे दुश्मन सिल लेता है। या बट आई प्रे लेकिन मैं प्रार्थना करता फ्रॉम हूँ टुडे ऑनवर्ड्स, आज से आगे इन योर प्रॉब्लम आपकी समस्या में यू आर गोइंग टू ओपन योर माउथ आप आपका मुंह खोलोगे, एंड यू आर गोइंग टू प्रेज योर गॉड. प्रभु की स्तुति करोगे। Before I go ahead, let me ask you, what is praise? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ स्तुति क्या है? Praise means we talk to the Lord about His beauty. स्तुति का मतलब है हम प्रभु की सुंदरता के बारे में बात करते I हैं। want to ask you, is your God beautiful? मैं आपको पूछना चाहता हूँ क्या आपका प्रभु सुंदर है? Your God is beautiful. आपका प्रभु बहुत सुंदर है। Is He powerful? क्या वो सामर्थ्यशाली है? Is He wise? क्या वो बुद्धिमान है? Does He have all knowledge? क्या उनके पास सब ज्ञान है? Can He do impossible क्या वो things? असंभव बातें कर सकते हैं? So then tell Him. तो फिर कहो प्रभु से। आमेन, आमेन। कहो प्रभु से। So when you are faced with problem, तो जब आप समस्या का सामना कर रहे हो, when you are going through pain, जब दर्द से गुजर रहे हो, tell the Lord, प्रभु से कहो you are so beautiful. आप कितने सुंदर हो, You are so beautiful. आप कितने सुंदर हो, You are so beautiful. आप कितने सुंदर हो। You are the God who said, I am the God who heals you. प्रभु आपने कहा है कि मैं वो परमेश्वर जो तुम्हें चंगाई देता हूँ। You are the God who said, I will supply all your needs. आप ही ने कहा है कि मैं तुम्हारी सारी जरूरत को पूरा करूंगा। My beautiful Jesus. सुंदर यीशु। So when Judah began to praise the Lord, जब जूडा के लोग प्रभु की स्तुति करने लगे, you know what happened? पता है क्या हुआ? Suddenly God entered their problem. अचानक से प्रभु ने प्रवेश किया उनकी परिस्थिति में। How do you bring God in your problem? आपकी समस्या के अंदर प्रभु को कैसे लेके आना है? Not by crying.
रोने से नहीं होता है, by praising the Lord. स्तुति करने से होता है। Bring the Lord into your problem by your praise. आपकी समस्या में प्रभु को खींच के लाओ स्तुति के द्वारा। So how do you open the door to the Lord for your problem? तो प्रभु के लिए दरवाजा कैसे खोलते हैं हमारी समस्या में? Praise. स्तुति करने के द्वारा। See, you all sing, it is all good. आप सब गाते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन जीवन अलग गोष्ट आहे. मराठी, हिंदी सगळं मिक्स. यहां से जब तुम बाहर जाओगे ना, लाइफ बिगिंस. जीवन शुरू होता है। अब भी गीत गाना बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि यहां पर कोई कोई लोग मुझे बोलते हैं पास्टर विजय को बुलाओ, पास्टर विजय को बुलाओ, वो गाएंगे ना, हम लोग गाएंगे उनके साथ. मैं तुम्हारे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ प्रभु की स्तुति करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकता हूं ना. कल का दिन जब आएगा ना, शायद कल जब तकलीफ आएगा, आप क्या करने वाले हो? कोई प्रॉब्लम नहीं. कल पास्टर ने हमें क्या सिखाया रे? क्या सिखाया? स्तुति करना. क्या सिखाया हमें? क्या सिखाया हमें पास्टर ने? कि हमने हमारे तकलीफ के दरवाजे को खोल सकते हैं और प्रभु को अंदर खींच के ला सकते हैं स्तुति के द्वारा. See, the trouble in your life will always make your mouth shut. जो आपके जीवन में समस्या है ना, वो आपके मुंह को बंद कर देगी. But I want to tell you, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, to praise the Lord, you have to open your mouth. प्रभु की स्तुति करने के लिए मुंह खोलना पड़ता है. So number one, God will fight for you. पहली बात, प्रभु आपके लिए लड़ेंगे. Yeah. Now over there, it was a physical battle. वहां पर शारीरिक युद्ध था. Yeah, it was between Jehoshaphat and the three armies. और ये यहोशाफात और वो जो तीन सेनाएं आ रही थी उनके खिलाफ था. And Jehoshaphat and the people of Judah, they said, "Please come, Lord." और यहोशाफात और जुड़ा के लोगों ने कहा, कृपया करके आओ प्रभु. Moment God came, जिस क्षण प्रभु आए, suddenly you know what happened? अचानक क्या हुआ पता है? The enemies begin to kill themselves. जो शत्रु है एक दूसरे को ही मारने लगे. Okay, let me say it again. You know, for your enemy to disappear, आपके दुश्मन को गायब होने के लिए time नहीं लगता है. आमेन. Ah, आमेन. for your enemy to disappear, it doesn't take time. आपके शत्रु को गायब होने के लिए समय नहीं लगता है. Some of you should know that the enemy has entered your family आप में से कुछ लोगों ने जानना है कि शत्रु ने आपके परिवार में प्रवेश किया है, or your work या फिर आपके काम में, or our city. या हमारे शहर में. No problem. कोई समस्या नहीं. Now we know the key. अब हम चाबी जानते हैं. We know the key. हम चाबी जानते हैं. And the key is praise. और वो चाबी है स्तुति. When you praise the Lord, जब आप प्रभु की स्तुति करते हो, your enemy will be confused. आपका शत्रु गड़बड़ में आ जाएगा. Look at this verse. Look at this verse. 2 Chronicles 20 verse 22. दूसरा इतिहास 20 में 22. Now when the enemy came against them, जब शत्रु उनके खिलाफ आया, you know what they did? पता है क्या किया They उन्होंने? began to praise the Lord. वो प्रभु की स्तुति करने लगे. And as soon as they began to praise the और Lord, जैसे ही प्रभु की स्तुति करने लगे, God came inside. प्रभु अंदर आ गए. The आमेन. moment God came inside, जिस क्षण प्रभु आए, enemy began to kill each other. तो शत्रु है एक दूसरे को ही मारने लगे. I call this the confusion anointing over your enemy. मैं इसे गड़बड़ी का अभिषेक बोलता हूँ जो आपके दुश्मन के ऊपर आता है. तुम तुम्हारे दुश्मनों को देख के डरो मत. Don't be afraid of your enemy. आपके दुश्मन से डरो मत. You have a key. आपके पास चाबी है. What is the key? क्या है वो चाबी? Praise. स्तुति. Praise. स्तुति. Praise. स्तुति. Praise the Lord. स्तुति करो. For Jehoshaphat, he had 3 physical armies against them. यहोशाफात के लिए 3 शारीरिक सेनाएं थी जो उसके खिलाफ आई थी. But for us, हमारे लिए Jesus told us, no enemy for you. यीशु ने कहा तुम्हारे लिए कोई दुश्मन नहीं है. आदमी तुम्हारा दुश्मन नहीं है. आमेन. So I have to first understand who is my enemy. तो पहले तो मुझे समझना है कि मेरा दुश्मन है कौन. Yeah, Ephesians 6 and verse 12 says, एफिसियों 6 में 12, man is not my enemy. जो मनुष्य है वो मेरा दुश्मन नहीं है. Gabriel is not my enemy. गैब्रियल मेरा दुश्मन नहीं है. Amen. Wilson is not my enemy. विल्सन मेरा दुश्मन नहीं है. Rabbi is not my enemy. रब्बी मेरा दुश्मन बिल्कुल नहीं है. No. Then who is my enemy? फिर कौन है मेरा दुश्मन? Demonic spirits. दुष्ट आत्माएं. The neighbor who is troubling you is not your enemy. जो आपका पड़ोसी जो आपको तकलीफ दे रहा है ना, वो आपका दुश्मन नहीं है.
In your family, somebody is troubling you. That's not your enemy. आपके परिवार में कोई आपको तकलीफ दे रहा है, वो आपका दुश्मन नहीं है। No. नहीं। There's somebody behind. उसके पीछे कोई है। Oh, come on. There's somebody behind. उसके पीछे कोई है। Go for the real enemy. जो सच्चा दुश्मन है ना, उसके लिए जाओ। Your enemy is a spirit. आपका जो दुश्मन है वो आत्मा है। He is a person without a body. ऐसा व्यक्ति जिसके पास शरीर नहीं है। And what is the Lord saying? और प्रभु क्या कह रहे हैं? I will teach you in this next 3 months how to dominate this enemy. 3 महीने में मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये दुश्मन के ऊपर कैसे राज करना है। I will teach you how to dominate this enemy. मैं तुम्हें सिखाऊंगा ये दुश्मन के ऊपर कैसे राज करना है। So my enemy is not a physical person, it's a spiritual. तो मेरा दुश्मन कोई शारीरिक व्यक्ति नहीं है, वो आत्मिक है। You're with me? Amen. Not a physical, it's a spiritual वो thing. शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है। Who are they? कौन है वो? Demonic spirits. दुष्ट आत्मा है। So from tonight onwards, you should know when you praise the Lord, तो आज रात से आगे आपने जानना है कि जब आप प्रभु की स्तुति करते and the हो, moment God comes, जिस क्षण प्रभु आते हैं, the demons that are trying to bring destruction all around you, they will be confused. जो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में नाश लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गड़बड़ी में आ जाएंगे। वो गड़बड़ी में आने वाले हैं। है। Can I hear an amen there? Okay. Now, not only God is saying you have a spiritual enemy, तो प्रभु कह रहे हैं आपका आत्मिक दुश्मन तो है, but He says I'm giving you spiritual weapons. लेकिन प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें आत्मिक हथियार देता हूँ। मैं बहुत बार सोचता था प्रभु तूने ये परमिशन क्यों नहीं दिया, किसी ने झापड़ दिया तो झापड़ लगा सकते। I always used to think, मैं हमेशा ऐसा सोचता था, but now I understand. लेकिन अब मैं समझता हूँ My enemy is not a physical person. मेरा दुश्मन शारीरिक व्यक्ति नहीं Come है। on. He's not a physical person. वो शारीरिक व्यक्ति नहीं है, It's a spiritual वो person आत्मिक व्यक्ति है, who doesn't have a body, जिसके पास शरीर नहीं है, but who can control people if they allow. लेकिन जो लोगों के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं अगर वो अनुमति देते तो। अगर लोग अनुमति देते हैं तो ये आत्माएं लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है क्या करना है। Amen. Let me say this, your season is changing. आपका मौसम बदल रहा है। Come on. Your season is changing. आपका मौसम बदल रहा है। Why? क्यों? Because you are getting a revelation. क्योंकि आपको प्रकाशन आ रहा है How to handle your enemy. आपके दुश्मन का कैसे सामना करना है। Yeah. ज्यादा बात मत करो, प्रभु से बात करो, उसके बारे में बात करो। Can I hear an amen there? Okay, so you have a spiritual enemy, आपका आत्मिक दुश्मन है and God says, I have given you spiritual weapons. और प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें आत्मिक हथियार दिए। 2 Corinthians 10 and verse 4. दूसरा कोरिन्थियों 10 में 4। What weapons you have? कौन से हथियार है तुम्हारे पास? We use God's weapons, हम प्रभु के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं and they are very और वो powerful. बहुत सामर्थशाली हथियार है। Very powerful. बहुत सामर्थशाली है। Very powerful. बहुत सामर्थशाली, Very powerful. बहुत सामर्थशाली, To destroy the stronghold of the enemy. शत्रु के मजबूत गढ़ गिराने के लिए। हमेशा याद में रखना, शत्रु मजबूत गढ़ मनों में बांधता है लोगों के। तो इस वक्त अगर आपको तकलीफ हो रहा है, लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो उनके शरीर को मत देखो, उनके मन को देखो, क्योंकि वहीं पर कुछ झूठ के गढ़ उसने बांधे हैं। और प्रभु कह रहा है जब तू स्तुति करना शुरू करेगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं उन गढ़ों को गिराऊंगा। I will break those strongholds. मैं वो मजबूत गढ़ गिराऊंगा। This weapon, ये जो हथियार है, it will destroy people's wrong ideas. लोगों के मन में जो झूठी कल्पनाएं हैं उसको गिराएंगे। Why people are struggling? Why people are fighting? Because there are wrong ideas in their mind. क्यों लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्यों लोग झगड़ा कर रहे हैं? क्योंकि उनके मन में गलत योजनाएं,
है, गलत कल्पनाएं है। Yeah, maybe if there's a fight happening in your house, maybe if there's a fight happening in your workplace, maybe if there's a fight happening in your locality, you should know people have wrong ideas in their mind. हो सकता है आपके घर में झगड़ा चल रहा है, आपके परिवार में, आपके काम के जगह में, या फिर आपके पड़ोस में, तो आपको ये समझना है जब ये झगड़ा चल रहा है लोगों के मन में कुछ गलत कल्पनाएं हैं। Who gave it? किसने दी उनको? The spirits without body. वो आत्माएं जिनके पास शरीर नहीं है। चलो यहाँ बोलता, the spirits without the body gave those ideas. वो आत्माएं जिनके पास शरीर नहीं है, उन्होंने ये कल्पनाएं दी उनको। You want to see the power of praise? स्तुति का सामर्थ क्या आप देखना चाहते You हो? want to see? क्या देखना चाहते हो? Okay, let's go to Psalm 149 verse 6 to verse 8. भजन संहिता 149 में 6 से 8। Let God's high and holy praises fill their mouths. उन्हें तो प्रभु की जो ऊंची ऊंची स्तुति है उनके मुंह में भर जाए। Yes, and their shouted praise are their weapons of और war. उनका जो चिल्लाते हुए जो स्तुति करते हैं वो उनके युद्ध के हथियार है। Their shouted praise are what? Weapons of war. उनके चिल्लाते हुए जो स्तुति करते हैं वो उनके युद्ध के हथियार है। हर समय जब आप पूरे दिल से प्रभु की स्तुति करते हो, और अगर तुम्हारे सामने दुश्मन खड़ा है, तो मैं तुमसे कह रहा हूं वही स्तुति तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हथियार बन रहा है। So when you are surrounded by your enemy, तो जब आपके दुश्मन से आप घेरे हुए when रहते you हो, are surrounded by trouble, समस्या से घेरे रहते हो, when you are surrounded by pain, दर्द से घेरे रहते हो, lift your hand अपने हाथ उठाना and say, और कहना, praise the प्रभु की Lord. स्तुति हो, Praise the स्तुति Lord. हो। What is that? वो क्या है? Weapon. वो हथियार है। Weapon. हथियार है। It's a weapon. वो हथियार है। It's a weapon. वो हथियार है। आपको पता है दाविद को कोई हरा नहीं सकता था। शैतान ने सोचा इसको मैं अडल्ट्री यानी उसको क्या बोलते हैं? वे विचार में फंसा कर इसको मैं निपटूंगा। लेकिन ट्राई किया उसने, 9 महीना वो जीता। फिर प्रभु ने उसके दास को भेजा और बोला उसको समझाओ, उसको वापस लाओ। यही व्यक्ति है जो कहता है मैं 7 बार प्रभु की स्तुति करता हूं। मैन आपको पता है आप में से कुछ लोग हैं, हमारा खुद का शरीर ही हमसे युद्ध करता है कभी कभी। कोई आमीन नहीं बोल रहा है? इस समय आ चुका है that praise should be used to defeat our very flesh in the name of Jesus. स्तुति का इस्तेमाल करना है हमारे खुद के देह को हराने के लिए। I love this thing about David. मुझे दाऊद के बारे में बहुत पसंद है। पागल के जैसे नाचता था। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें नाचना है प्रभु के सामने, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? स्तुति नहीं, मन को मनाना पड़ेगा, भावनाओं को मनाना पड़ेगा, अपने इच्छा को मनाना पड़ेगा, और फिर तो जो तेरा शरीर बोल रहा है नाही रे बघ ना ते आपल्याला काय म्हणणार, तो वो ऐसा नाचा। किंग डेविड ही डांस इन सच अ वे। इस तरह से दाऊद नाचा। His wife is saying, "What you dance like a common man?" कि पत्नी कह रहे कैसे नाच रहे थे तुम? उसकी पत्नी को यही पता नहीं था स्तुति कैसे करते हैं। मैं अभी यहां पर तुम्हें स्तुति सिर्फ मुंह से जैसे ऐसा नो, यूज योर माउथ, अपने मुंह का इस्तेमाल करो, यूज योर हैंड, अपने हाथों का इस्तेमाल करो, लिफ्ट योर हैंड, अपने हाथ उठाओ, थोड़ा जंप करो, थोड़ा जंप करो, थोड़ा घूमो ऐसा। आमीन नहीं बोल रहे हो? आमेन। That is praise. उसे स्तुति कहते हैं। आमेन। Have you ever been alone, you know? Have you been alone and you have been praying and suddenly you feel like that? Praise. क्या कभी आप अकेले Yeah, that's हो, praise. प्रार्थना That's कर रहे हो और ऐसे नाचने का मन हो रहा praise. है? That's praise. उसे स्तुति कहते हैं। You know, because praise you are talking about the Lord to the Lord. क्योंकि स्तुति का मतलब हम प्रभु से प्रभु के बारे में ही बोल रहे हैं। Yeah.
And I always want to tell you, you should praise the Lord alone. और मैं कहना चाहता हूँ अकेले में स्तुति करो। हाँ, थोड़ा सा पैर हिलाओ, थोड़ा घूमो, थोड़ा ऐसा करो। आप बोलोगे पास्टर मैं अभी 60 साल की हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 60 साल के लोगों का मूवमेंट थोड़ा कम होगा थोड़ा कम होगा, बस इतना ही रहेगा। लेकिन कहां है तेरा दिल, कहां है वो देख रहा है प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। आपने छोटे बच्चों को देखा है? हाँ? वो अपने ग्रैंडफादर के सामने आएंगे, ग्रैंडफादर कुछ भी करते रहेगा ना, तुरंत देखेगा ऐसा ऐसा करके। आपका स्तुति है ना वाओ, प्रभु का, you draw the Lord, प्रभु का ध्यान अपनी ओर खींचोगे, you draw the Lord, प्रभु को आप खींचते हो। some people are in prayer. It's good, prayer is good, because I want to tell you what prayer does. What does प्रार्थना बहुत अच्छा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना क्या करती है। prayer will help you to open your heart and release it to God. प्रार्थना से आपको मदद मिलेगी कि अपने हृदय को खोलो और प्रभु को दे दो। Yeah, because in prayer you are telling God your need. क्योंकि प्रार्थना में आप प्रभु को अपनी जरूरतें बता रहे हो। In praise you are telling God who He is. लेकिन स्तुति में आप प्रभु को बता रहे हो कि प्रभु कौन है। That's where मैं भी रोता था, लेकिन अब मैं सीख गया हूं। प्रार्थना में रो लो, स्तुति में आमेन, आनंद करो। आमेन। Psalm 149, their shouted praise are their weapons of war. उनका जो चिल्ला के स्तुति करना है वो उनके युद्ध के हथियार है। And these weapons will bring the vengeance of God over every opposing force. Everything which is opposing you, the anger of God is going to be released over it in the name of Jesus. और ये जो हथियार है वो प्रभु का क्रोध स्वतंत्र करेंगे। जो भी चीज आपके विरोध में आ रही है, प्रभु के विरोध में आ रही है, उसके खिलाफ प्रभु का क्रोध आएगा। Opposing force, जो विरोध करते हैं, resistant power. जो विरोध करते हैं, ऐसा सामर्थ। क्या विरोध हो रहा है तेरे लिए? नहीं पास्टर मैं और थोड़ा सो जाऊंगा तो सारा मेरा विरोध खत्म होने वाला। विरोध खत्म नहीं वाला, तेरे सर के ऊपर आने वाला है। वो तेरे सर के ऊपर आने वाला है। पानी इधर तक आया है, अभी इधर आने वाला है। प्रभु कह रहा है ये ले हथियार। आमेन, आमेन। Open your mouth and praise the Lord. खोल कर प्रभु की स्तुति करो। You will bring the anger of God against every opposing force and every resistant power. प्रभु का क्रोध तुम स्वतंत्र करोगे, जो भी चीज तुम्हारे खिलाफ आ रही है उसमें। And you know what you will do? पता है क्या करोगे? You will bind kings. राजाओं को बांध दोगे। राजा यानी जो शरीर वाला नहीं, दुष्ट आत्माओं में अलग अलग तरह के अलग अलग स्तर में आत्माएं होते हैं, उन्हें तुम बांधोगे। आमेन, आमेन, आमेन। क्या पास्टर मैं उन्हें बांधूंगा? तू नहीं, प्रभु खुद भेजेगा। आमेन। God will send His angels for you. प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए भेजेंगे। He will send His angels for you. अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए भेजेंगे। And what they will do, the moment you begin to praise the Lord, जिस क्षण आप स्तुति करने लोगे वो क्या करेंगे? suddenly heaven will open. अचानक स्वर्ग खुल जाएगा। And the angels of God, फटाफट, they will start coming down. प्रभु के स्वर्गदूत नीचे आना शुरू करेंगे। And they will start binding these demons in the name और ये of दुष्ट Jesus. आत्माओं को बांधना शुरू करेंगे। And suddenly you see अच्छा- atmosphere is changing. अचानक आप देखोगे कि वातावरण बदल रहा है। The person's mind is getting cleared. वो व्यक्ति का मन स्पष्ट हो रहा है। Okay, so what will praise do for you? तो स्तुति आपके लिए क्या करेगी? God will fight for you. प्रभु आपके लिए लड़ेंगे। Please write this. लिख लीजिए, God does not lose one battle. प्रभु एक भी युद्ध हारते नहीं है। Only you should open the door for him to come. लेकिन आपने दरवाजा खोलना है कि प्रभु अंदर आ सके। Okay, number two. दूसरी बात। Number two. दूसरी बात, Why? Why? What is the power of praise? इस What? स्तुति में सामर्थ क्या है?
When you praise the Lord, God will protect you. जब आप प्रभु की स्तुति करोगे, प्रभु आपको सुरक्षित रखेंगे। Yeah. That means इसका मतलब है the enemy wants to touch you, but he can't touch you. शत्रु आपको छूना चाहता है लेकिन नहीं छू सकता है। Okay, for example, you have a job, okay? उदाहरण के तौर पे आपके पास काम है, Yeah, and people in your workplace, they are thinking, somehow to remove you. और काम की जगह में कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं आपको निकालने के बारे में। They try, वो कोशिश करते हैं, they plan, वो योजना बनाते हैं, they try, कोशिश करते हैं, but they can't. लेकिन नहीं कर सकते, They can't. नहीं कर सकते, They can't. नहीं कर सकते। Why they can't? क्यों नहीं कर सकते? Because there is an invisible protection over you. क्योंकि एक अदृश्य सुरक्षा आपके ऊपर है। There's an invisible protection over you. एक अदृश्य सुरक्षा आपके ऊपर है। I want to tell all the mothers and fathers. सभी मम्मी पापाओं को मैं कहना चाहता हूँ, If you learn to praise the Lord every day, अगर आप सीखोगे प्रभु की स्तुति रोज करना, you will not only bring protection over you, तो आप अब खुद के ऊपर तो सुरक्षा लाओगे ही, but you will bring protection over your children आपके also. बच्चों के ऊपर भी सुरक्षा लाओगे। Job 1:10. अय्यूब 1:10। Now, the devil is talking to the Lord. शैतान प्रभु से बात कर रहा The है। Lord asked him, "Where are you coming from?" प्रभु से पूछ रहे कहाँ से आ रहे हो तुम? So he said, "I just went to Sakinaka. उसने कहा मैं साकिनागा जाके आया, Then I went to that HOP also. एचओपी भी जाके आया, And I went to Malad, Malwani also. मालवनी भी जाके आया, And that Khargar also I went." हरगर भी जाके आया। So the Lord will ask, "Okay, did you see this person?" तो प्रभु पूछते क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा? He said, "Yeah, I saw." वो कहते हैं हाँ मैंने देखा। So there's a man called Job in the Bible. तो बाइबल में एक व्यक्ति जिसका नाम है अय्यूब। So God asked, the devil, "Did you see my servant Job?" तो प्रभु ने शैतान से पूछा क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब को देखा क्या? He said, "Yeah. तो वो कहता है हाँ मैंने देखा। And God said, "There's nobody like him." और प्रभु कह रहे उसके जैसा कोई है ही नहीं। Then the devil tells the Lord, तो फिर शैतान प्रभु से कहता है "You know why he follows you?" पता है वो आपका पीछा क्यों करता है? 2 reasons. 2 कारण है। Because demons can see the invisible things. क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो है वो अदृश्य चीजों को देख सकते हैं। तुम नहीं देख सकते हो, शायद मैं नहीं देख सकता हूं, लेकिन दुष्ट आत्माओं को अच्छे से दिखता है आत्मिक चीजें। And I'm talking to you spiritual things. और मैं आपको आत्मिक चीजें बता रहा हूँ। डरो मत, जो बाहर होता है उससे कुछ फर्क नहीं, जो आत्मा में होता है वही यहां होने वाला है। So where should you win? Where should you win? कहाँ पे आपने जीतना है? In the spirit. आत्मिक क्षेत्र में जीतना है। यहां नहीं, आत्मा में जीतोगे तो यहां वही जीत आएगा। आमेन। Can I hear an amen there? Some people may say, "I'll finish you." कोई लोग कहेंगे मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तू मत बोल, क्या बोल रहा है? क्योंकि खत्म करना यहां पर नहीं होता है, वहां पर होता है। Come on, come on, come on. It doesn't happen here. Here a man cannot decide. इसको मैं खत्म कर दूंगा। यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं निर्णय ले सकता मैं इसको खत्म करूं। No. It is God who has put the breath in your nose. प्रभु ने वो श्वास फूका है आपके अंदर। हाँ, और अगर प्रभु कहता है नहीं होने वाला है, वो कितना भी ट्राई करे, वो दूर से चिल्लाते रहेगा लेकिन कुछ होता नहीं। आपको पता है आपके जीवन में कितने लोग आए और गए जो चिल्लाते थे? Come on, yes. चिल्लाते थे लेकिन Yes. कुछ हुआ नहीं। Yes. क्यों हुआ नहीं? क्यों नहीं हुआ? Because there was an invisible wall of protection over your life. Amen. So many people are losing job. Your job is there. You know why? Protection. कितने लोग काम खो रहे हैं लेकिन आपका काम है, पता है क्यों? क्योंकि वो अदृश्य सुरक्षा है। This is what the devil is telling God. Devil is telling God about the thing on the earth. शैतान प्रभु से कह रहा है जो चीज पृथ्वी पर चल रही है। मुझे बताओ, अगर जोब ने अगर 30 फीट लंबा ऊंचा अगर वॉल भी बना के छुप जाता तो भी ये वार कर सकता था। या इट्स नॉट द फिजिकल, ये शारीरिक में क्या हो रहा है उसके बारे में इट्स नहीं द है, स्पिरिचुअल। आत्मिक के बारे में है। एंड आई टोल्ड यू दैट प्रेज इज अ स्पिरिचुअल थिंग। और मैंने आपको बताया स्तुति आत्मिक बात है। ये जैसे ऐसा बात करने का नहीं,
No, it's a spiritual thing. ये आत्मिक बात है, It's about God. प्रभु के बारे में, You are talking about Him. प्रभु के बारे में बात कर रहे हो। The whole spiritual realm. They open their eyes, they open their ear, they listen to you when you सारा open your mouth. आत्मिक क्षेत्र सब सुनते तुम क्या बोल रहे हो, देखते वो क्या कर रहे हो। So what the devil is saying, तो शैतान क्या कह रहा है? you have always प्रभु आपने हमेशा 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 put a wall of protection. एक सुरक्षा की दीवार बांध के रखी है। I want to tell you, God has a wall of protection over you. प्रभु के पास सुरक्षा की दीवार आपके ऊपर है, And I'm going to show you how to keep it. और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे रखना है। Even if your children go out, don't be worried if they come half an hour late. Don't worry. आपके बच्चे भी बाहर जाते हैं, आधा घंटा लेट आते हैं, चिंता मत करो, God's protection is there. प्रभु की सुरक्षा है उनके ऊपर, God's protection is there. प्रभु की सुरक्षा है उनके ऊपर। हम हमारे बच्चों के साथ 24 घंटे चल नहीं सकते, लेकिन वो है कोई तो भी. There is somebody who तो can है। go with your children 24 hours a जो आपके day. बच्चों के साथ 24 घंटे रह सकते हैं। So what does the devil tell? तो शैतान क्या कह रहा है? God, you. प्रभु आपने, म्युनिसिपैलिटी ने नहीं, एक गवर्नमेंट ने नहीं, तुमने खुद ने ना इसके ऊपर एक दीवार, एक सुरक्षा का दीवार, पता नहीं क्या, लेकिन वो बांध के रखा. मैंने कोशिश किया लेकिन जा नहीं सक रहा हूं. कोशिश बहुत किया है, तुम्हें पता नहीं, कोशिश बहुत हुआ है, लेकिन वो अंदर घुस नहीं सका. मैन, आप मुझे पूछोगे धन्यवाद देने के लिए क्या है? तू जिंदा है, आमेन, तेरा परिवार जिंदा है, तेरा शादी ठीक है, तेरा उद्धार हुआ है, मैन, तुझे एक अच्छा कलीसिया मिला है, आमेन, एक अच्छा शहर दिया है प्रभु ने, मैन, जहां हमको आजादी है प्रभु की आराधना करने के लिए. Not only you are protected him, but you have everything he does. You prosper it, Lord. प्रभु आप उसको सुरक्षित तो रखते हो, लेकिन वो जो भी करता है उसमें से उन्नति भी देते हो। You are ready? Demons are going to talk among themselves and say, इसके साथ पंगा मत लो, क्योंकि इसके ऊपर प्रभु का सुरक्षा है. आमेन, आमेन। They'll get tired. वो थक जाएंगे दुष्ट आत्माएं। वो बार बार आते, ठोक के देखते, अरे नहीं यार जाने दे, अभी बंद है. What I want to tell you is, stay in the invisible protection of God. प्रभु की अदृश्य सुरक्षा के अंदर रहो। आमेन। Get your family under that invisible protection of अपने God. परिवार को प्रभु की अदृश्य सुरक्षा के अंदर रखो। Get your work, your business under that invisible protection of God. आपके काम को, बिजनेस को प्रभु के अदृश्य सुरक्षा के अंदर रखो। How does this protection stay over you? ये सुरक्षा कैसे रहती है आपके ऊपर? Psalm 5 verse 11. वचन संहिता 5 में 11। Let all who run to you for protection उन्हें तो वो सभी लोग जो आपके पास दौड़ के आते हैं सुरक्षा के लिए, always हमेशा sing joyful songs to आनंद you. के गीत गाते रहे। How do you stay under the protection of God? प्रभु की सुरक्षा के अंदर कैसे रहते हैं? Continuously praise the Lord. लगातार प्रभु की स्तुति करते रहो। चाय का ब्रेक लेते हो पता है? सवेरे सवेरे चाय, शाम को 4 बजे चाय, कोई लोगों का बीच में 11 बजे भी होता है, और कोई लोगों का तो 7 बार चाय होता है. नो प्रॉब्लम. जब भी तुम चाय पियोगे ना, आग बंद करके प्रभु के लिए एक स्तुति गीत गाइए. आमेन। मेक इट अ हैबिट. एक आदत बना लो। स्टे अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रभु गॉड. की सुरक्षा के अंदर रहो। Psalm 64 verse 10. भजन संहिता 64 में 10। What is actually this protection? ये सुरक्षा है क्या? What is it? What is it made of? किससे बनी है ये सुरक्षा? दीवार देखा ना किससे बनी होती है? हाँ, ईंट और पता नहीं क्या क्या. आपने फोर्ट देखा होगा, किला, उसको भी एक बड़ा दीवार बनाते, पता है क्या? ताकि अंदर के लोग क्या रहे? सुरक्षित। आपको पता है प्रभु आपको किस चीज के द्वारा सुरक्षा देता है? लुक देयर.
The lovers of God will be glad, rejoicing in the Lord. प्रभु के प्रेमी आनंदित रहेंगे, प्रभु में आनंद मनाते रहेंगे। And they will be found in His glorious wrap around presence. वो पाए जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति उनको घेरे हुए रहेगी। The presence of God will be your protection. प्रभु की उपस्थिति आपकी सुरक्षा होगी। The presence of God will be your protection. प्रभु की उपस्थिति आपकी सुरक्षा होगी। दुष्ट आत्माएं तुमसे पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति तुम्हारे इर्द गिर्द बने रहेगी। Come on, are you with me? Okay, you know the people of Israel इज़राइल के लोग को आप जानते हो, when they were in the wilderness. जब वो मरुस्थल में थे, Morning, सुबह there will be a cloud. एक बादल आ जाता था। So when anybody looks at the people of Israel, जब कोई भी इज़राइल के लोगों को देखते थे, they say, वो कहते थे, पंगा मत ले. In the night, रात को when they are all quietly sleeping, जब शांति से सब सो रहे हैं, fire. आग। And when the enemy looks, और जब दुश्मन देखता था, they look at one another एक दूसरे को देखते and they say, और कहते, what to do? अब क्या करे? The third one says, तीसरा कहता है, इससे पंगा मत ले. आमेन। Many are your enemies, but let me tell you, there is a protector called the Almighty God. He shall protect you. He shall protect you and preserve you. बहुत है आपके दुश्मन, लेकिन परमेश्वर हमें सुरक्षित रखते हैं और संभाल के रखते हैं। Okay, as the people of Israel used to go, जैसे इज़राइल के लोग जाते थे, this is what used to happen. ऐसा होता था, People will not touch them. लोग उनको छूते नहीं थे। You know why? पता है क्यों? Because the Bible says the fear of the Lord went ahead of them. बाइबल में लिखा है परमेश्वर का भय उनके आगे जाता था। परमेश्वर का भय उनके आगे आगे जाता था। यानी इसका मतलब हवा के अंदर, in the atmosphere, there is this presence of God which brings fear among people. वातावरण में प्रभु की उपस्थिति थी जो परमेश्वर का भय लाती थी। So anybody even thinks about anything about the children of God, suddenly this atmosphere will surround them. तो कोई अगर सोचता भी था इज़राइल के लोगों के खिलाफ कुछ, तो प्रभु की उपस्थिति वहां पे आ जाती थी। Even today, people are saying, हम इस राष्ट्र को निकाल लेंगे, हम उनके पास से छीन लेंगे। अरे बाबा, शास्त्र पढ़ो, परमेश्वर के मुंह में से आया है, इज़राइल को मैंने ये देश दिया है और वो कभी उसके पास से छीना नहीं जाएगा। Amen. Come on, Amen. this is the truth. ये सच्चाई है। Your praise creates an atmosphere. आपकी स्तुति एक वातावरण का निर्माण करती है।